السلام علیکم، 7 نیوز کے ساتھ میں ہوں فہیم چوہدری اور میں ہوں علینا فہد۔ کانکوٹ میں کراچی کو الگ صوبہ بنانے کے مبینہ بیان پر قومی عوامی تحریک کی شدید نعرے بازی، احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز علی نواز۔ جی علی نواز، آگاہ کیجیے گا۔ ہم اس وقت موجود ہیں کندھکوٹ ٹاور چوک پر، جہاں قومی عوامی تحریک کی جانب سے سندھ کے بٹوارے اور سندھ میں جو ہے نئے صوبے بننے کے جو ایشو ہے اسی حوالے سے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ مزید احتجاج میں شامل جو ہے رہنماؤں سے بات کرتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ ایک فیڈریشن کے طور پر جب وجود میں آئی تو 4 قومیں تھیں، 4 صوبے تھے جو پہلے ہی خود مختار تھے، تو انہوں نے قرارداد پیش کر کے اس ملک کو وجود میں لایا۔ پاکستان میں امکانی طور پر بننے والے نئے صوبوں کے خلاف احتجاج ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہلے ہی معاشی طور پر کنگلا ہو چکا ہے، مزید 35 صوبوں کا بار برداشت نہیں کرے گا۔ مزید 35 وزیر اعلیٰ، مزید 35 گورنر، مزید 35 آئی جی یا مزید 35 اسمبلیاں، یہ پاکستان کے اکنامی کے حساب سے ناممکن ہے۔ کوئی صوبہ نہیں چاہیے، یہ سازش ہے سندھ کے خلاف، سندھ کے 8 کروڑ عوام کے خلاف۔ یہ سازش سندھ کا 8 کروڑ عوام برداشت نہیں کرے گا۔ جی بالکل، آپ نے عوامی تحریک کے رہنماؤں کی باتیں سنی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ سندھ میں جو ہے صوبہ بننا ناممکن ہے، ہم مزاحمت کریں گے اور کبھی بھی سندھ میں صوبہ بننے نہیں دیں گے۔ قانونی طرح جہاں قرارداد پیش کی گئی ہے وہاں اگر صوبے بنا جائیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ دنیا میں 9 سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش، ملزم گرفتار۔ ملزم نے کم سن بچی کو گھر میں اکیلا دیکھ کر زیادتی کی کوشش کی۔ بچی کے شور مچانے پر اہل محلہ موقع پر پہنچ گئے، جبکہ متاثرہ خاندان کا ملزم کے خلاف سخت قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ پولیس نے والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا، مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اور یہ پہلے بھی ایک کیس جیل کٹ کے آیا، اس مسل لڑکی کے کیس جیل کٹ کے آیا۔ میری درخواست ہے ڈی پی او قصور ہے اور مریم نواز صاحب کے لہٰذا کہ یہ انسان جین کا کوئی حق نہیں ہے اتنے دنیا تے، سخت سخت اور کڑی تو کڑی سزا دیتی جائے۔ میرا نام محمد عاشق ہے، میں ٹاری کرن سنگھ دے رہن والا۔ میرے گھر چند دن پہلے ایک واقعہ ہوا، میں میری بیٹی گھر کلی سی، ریاست نام کا مجرم میرے گھر آ گھسیا، موقع اٹھایا فائدے کا، بچی کلی سی اور انہیں ناجائزی کرنے کی کوشش کی سو۔ اور یہ پہلے بھی ایک کیس جیل کٹ کے آیا، اس مسل لڑکی کے کیس جیل کٹ کے آیا۔ میری درخواست ہے ڈی پی او قصور ہے اور مریم نواز صاحب کے لہٰذا کہ یہ انسان جین کا کوئی حق نہیں ہے اتنے دنیا تے، سخت سخت اور کڑی تو کڑی سزا دیتی جائے۔ میرا نام محمد عاشق ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کانکوٹ کے محمد عمر خان نے ملیشیا میں MBW انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا ہے۔ ضلع کانکوٹ کے گڈو کالونی سے تعلق رکھنے والے ہونہار نوجوان محمد عمر خان نے ملیشیا میں منعقدہ MBW انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیت کر عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے۔ اس شاندار کامیابی کی خبر ملتے ہی ضلع کانکوٹ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ محمد عمر خان نے چیمپئن شپ کے ابتدائی مقابلے میں کوریا کے کھلاڑی کو شکست دی، جبکہ فائنل مارکے میں میزبان ملک ملیشیا کے حریف کو دھول چٹا کر گولڈ میڈل اپنے نام کر لیا۔ اس شاندار کامیابی پر DIG ناصر آفتاب پٹھان کی جانب سے نوجوان کھلاڑی کی سرپرستی کو سراہا گیا، جبکہ SSP کشمور محمد مراد اور ضلع کشمور پولیس نے محمد عمر خان اور ان کے والدین اور کوچز کو مبارکباد دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ہمارے نوجوان مستقبل میں بھی یوں ہی ملک و قوم کا نام روشن کرتے رہیں گے۔ بستی ملوک میں گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی واردات، مزاحمت پر فائرنگ سے لیڈی پولیس آفیسر سمیت 2 افراد زخمی۔ بستی ملوک میں مسلح ڈاکوؤں نے گن پوائنٹ پر لوٹ مار کی اور مزاحمت کرنے پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں ریسکیو 1122 نے فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا ہے۔ ڈاکو نے موٹر وے پولیس کی جونیئر پٹرول افیسر سویرا مظہر اور ان کے رشتہ دار عابد حسین سے 1,20,000 روپے نقدی اور 2 قیمتی موبائل فون چھینیے تھے۔ اس دوران مزاحمت کرنے پر ملزمان نے سیدھی فائرنگ کر دی، جس سے دونوں شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس نے موقع پر پہنچ کر تمام شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے شروع کر دیے گئے ہیں۔ ملک بھر کی طرح الہ آباد میں مہنگائی کا جن بے قابو، سبزی، پھل، گوشت اور دیگر اشیاء کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئی ہیں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز ملک صدام حسین کھوکر۔
इस वक्त मैं इलाहाबाद में मौजूद हूँ। इलाहाबाद में भी महंगाई का जिन बोतल से बहर आ चुका है। एशिया खुर्दो नोश के साथ साथ अब फल और सब्जियों की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा होता जा रहा है। जो गरीब आदमी है वो पहले ही महंगाई में की चक्की में फिर चुका है, ऊपर से हुकूमत की जानब से आए रोज महंगाई होती जा रही है। इसी वाले से बात करेंगे, मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे बात करेंगे। कहना है जी बिल्कुल, मैं घर से इलाहाबाद बाजार से सब्जी खरीदने के लिए आया हूं। जब यहां से गोभी के रेट का पता किया, वो दुकानदार ने बताया है कि 300 रुपए किलो है। इसी तरह जो आलू है वो भी 150 रुपए किलो है। इसी तरह जो गोश्त है उसका रेट भी है जो 500 केजी हो चुका है। हर रोज जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त है कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए और कीमतें कम की जाएं ताकि हम यहाँ से जो है खरीदारी बआसानी कर सकें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, शहरी का यही कहना, हमारी मौजूदा हुकूमत से अपील है महंगाई को कम किया जाए ताकि हर शहरी आसानी से हर चीज खरीद सके। जी, लाड़काना में एसएसपी अहमद चौधरी की हिदायत पर पुलिस की कार्रवाइयां, 9 जराइम पेशा अफराद गिरफ्तार, असलहा और मंशियात बरामद। एसएसपी लाड़काना अहमद चौधरी की खुसूसी हिदायत पर पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां करते हुए 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से आलाए कत्ल, नाजायज असलहा, मंशियात और चोरी शुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। तफसीलात के मुताबिक बॉर्ड पुलिस ने आसिफ जुनेजो केस में मतलूब मुलजिम राबेल जुनेजो को आलाए कत्ल, तेज धार छुरी समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने नसीराबाद रोड पर मुकाबले के बाद मुलजिम अमरान को पिस्टल और गोलियों समेत धर लिया है। अभी आपको बताएं कि लाड़काना में बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड ब्रेस्ट फील्डिंग वीक के सिलसिले में सेमिनार एक्शन 2026 मंजूर। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना में हुकूमत सिंध, महकमे सेहत, IRC और आलमी अदारा सेहत WHO के बाहमी ताउन से वर्ल्ड ब्रेस्ट फील्डिंग वीक 2026 का सेमिनार मुनक्किद किया गया है। सेमिनार में 600 से ज्यादा माहिरीन और मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जिंदगी के पायदार आगाज के लिए माँ का दूध ने उन्वान से मुनक्किदा इस सेमिनार में सूबाई वजीर से डॉक्टर अजहर फजर जुनेजो ने वीडियो लिंक के जरिए बतौर मेहमान खुसूसी खिताब किया। उन्होंने कहा कि माँ का दूध बच्चों की सेहत को रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद है। वाइस चांसलर पुलिस ऑफिसर डॉक्टर नुसरत शाह मामले खुसूसी ने शिरकत की। बहावल नगर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। दर्जनों सानीन ने अपने मसाइल डायरेक्टर नैब के सामने रखे। मजीद जानते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज वकास फरीदी से। जी वकास, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, डायरेक्टर जनरल नैब की जानिब से आज DC ऑफिस के सब्जा में जो खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ पर जो नैब के अफसरान मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज खुली कचहरी लगाई जा रही है, इस वाले से क्या कहेंगे? जी, चेयरमैन साहब के VN के मुताबिक ये कचहरी का इनेकाद हुआ है, जिसमें स्पेशल जो है डायरेक्शन जो DG नैब आसिम लोधी साहब की हैं। तो यहाँ हम जब हाजिरी हुई है तो आप देख रहे हैं कितना बड़ा मजमा आया हुआ है। लोगों के बहुत सारे मसाइल और शिकायत जो है हम सुन रहे हैं। कुछ जो है उनके मौके पे उनका अजाला जो है जो मुतलका महकमे के लोग आए हुए हैं उनको मुनासिब कार्रवाई के लिए उनको रेफ़र कर रहे हैं। बाकी जितनी भी दरख्वास्तें हैं इंशाअल्लाह उनकी स्क्रूटनी जो है नैब ऑफिस में होगी और जिस पे जो मुनासिब कार्रवाई होगी इंशाअल्लाह उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस पे जो है नैब का ये चेयरमैन नैब जनरल रिटायर्ड नदीर अहमद भट्ट साहब का ये खसूसी VN है। और आप देख रहे हैं कि आवाम का भरपूर एतमाद है हमारी इस नैब की काविश पे कि उनके मसाइल यहाँ पे हल हो रहे हैं, उनकी शिकायत सुनी जा रही हैं। और हमारी ये कोशिश है कि जो नैब जो इस मुआशरे की सबसे बड़ी फसाद की जड़ है वो करप्शन है, उसका ख़ात्मा हो। इसी काविश में हम लगे हुए हैं। इसमें हम आवाम की अवेयरनेस और उसके एतमाद, उसके तआवुन की हमें ज़रूरत है ताकि जो है नैब की इस एफर्ट जो है इस कोशिश को कामयाब हो जाए। जी, आपने जैसे कि बात सुनी, इनका कहना था कि ये पाकिस्तान में से जो है हमने करप्शन को ख़त्म करना है। जी, ननकाना साहिब की फातिमा अबरार ने मैट्रिक इम्तहानात में 1199 नंबर हासिल करके मैदान मार लिया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा 7 न्यूज मोहम्मद इरफान गुजर से। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब की होनहार बेटी फातिमा अबरार के साथ, जिन्होंने
मैट्रिक इम्तहानात में लाहौर बोर्ड में 3री पोजीशन हासिल की है। मेरे साथ इस वक्त फातिमा इब्रार मौजूद है, आइए उनसे जानते हैं कि मुस्तकबिल में वो क्या बनना चाहते हैं। मैंने पाक गिरिजन हायर सेकेंडरी स्कूल से मैट्रिक किया है, मेरे 1189 मार्क्स हैं और लाहौर बोर्ड में मेरी 3rd पोजीशन है। ये मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे स्कूल के लिए, मेरे टीचर्स के लिए एक बहुत बड़ा ऑनर है और ये उनकी मेहनत की वजह से ये है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। सब का क्रेडिट उनको जाता है। सर यासिन ने, मेरे टीचर्स ने और मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए दिन रात कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है और मेरा मेन मकसद पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ करना है। मैं CSS करना चाहती हूँ फ्यूचर में और इसके लिए मैं मेहनत करूँगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। थैंक यू। जी बिल्कुल, आपने उनकी बात सुनी। उनका कहना है कि मैं मुस्तकबिल में CSS करके मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। जी IG पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर सेफ सिटीज वर्चुअल ब्लड बैंक के जरिए खुसूसी डोनर रजिस्ट्रेशन मुहिम का आगाज कर दिया। सुबह भर में रजाकाराना ब्लड डोनर रजिस्ट्रेशन मुहिम का आगाज किया जा रहा है। 8 अगस्त से 8 सितंबर तक जारी रहने वाली इस खुसूसी मुहिम का मकसद मेडिकल इमरजेंसी में शहरियों को बरवक्त खून की फ्राहमी यकीनी बनाना है। IG पंजाब ने तमाम पुलिस अफसरान और एहलकार को वर्चुअल ब्लड बैंक में बतौर रजाकार रजिस्टर्ड होने का हुक्म दे दिया, जबकि खून अतिया करने वाले एहलकारों को कम अज कम 1000 रुपए एजाजिया 1 दिन की रुखसत सर्टिफिकेट से नवाजा जाएगा। तमाम शोबाजात के सरबराहान इस मुहिम की जाती तौर पर निगरानी करेंगे। तालीमी इदारों और सिविल सोसाइटी के ताउन से भी मुहिम में तेजी लाई जाएगी, जहां नामजद पुलिस अफसरान वर्चुअल ब्लड बैंक एम्बेसडर का किरदार अदा करेंगे। उकाड़ा में जश्न आज़ादी की तैयारियां अरूज पर हैं। शहरियों की बड़ी तादाद ने बाजारों का रुख कर लिया है। शहरी अपने बच्चों के लिए झंडे, झंडियां, बैजेस, सब्ज हलाली परचम और बरकी कुमकुमे खरीदने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज उमर शहीन। जी उमर शहीन, कैसी गहमा गहमी है? जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद के साथ ही उकाड़ा की अहम शाहराहों पर 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल सज गए हैं। स्टॉल्स में बैचेज, कौमी परचम और नन्ही मुन्नी बच्चियों के लिए जो चूड़ियां हैं सब्ज हलाली रंग की, वो अवामी तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं और यहाँ पर शहरियों की कसीर तादाद देखने में आ रही है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं जो कि अपने बच्चों के साथ 14 अगस्त का सामान खरीदने के हवाले से यहाँ पे मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहना है। जी ऐसे ही है कि जैसे जैसे 14 अगस्त आता है, स्टार्ट हुआ है, तो ये हमारी खुशियां दुबाला हो गई है। ये हमारे बड़ों की कुर्बानियों का सिला है जो कि हम इस आज़ादी में जी रहे हैं। तो साथ ही ये हमारे बच्चे जो हैं वो इस दिन को, 14 अगस्त वाले दिन को सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि ये आज से ही शुरू कर दिया इन्होंने सेलिब्रेट करना। और हमने बाजार का रुख किया और बाजार में आए, हम अपने बच्चों के लिए बैजेस खरीद रहे हैं, बरकी कुमकुमे खरीद रहे हैं, झंडियाँ खरीद रहे हैं, सब्ज हलाली परचम खरीद रहे हैं, और ताकि हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकें और अपने हमारे बच्चे ये खुशियां जो ना सेलिब्रेट अच्छी तरह कर सकें। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, इनका कहना था कि ये जो पाकिस्तान है ये हमारे बड़ों की कुर्बानी का नतीजा है और ये अपने बच्चों के साथ आए हैं, अपने बच्चों को शॉपिंग करवा के दे रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, ताकि अपने घरों को सजा सकें और साथ ही साथ इंजॉय कर रहे हैं। जी बुलेटिन में मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर का नूरी दरवाजा जायरीन के लिए दोबारा खोल दिया गया। पाकपतन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर के दरबार शरीफ का तारीखी दरवाजा 40 रोज की फुरकत के बाद आम जायरीन के लिए दोबारा खोल दिया गया। उर्स मुबारक के अख्ताम पर शोहदाए करबला के एहतराम और सोग में नूरी दरवाजे को जायरीन के लिए बंद किया गया था। नूरी दरवाजा दोबारा खुलने के बाद खैर मिलने ही मुल्क भर से जाहिरीन की बड़ी तादाद और दरबार शरीफ पर पहुंचना शुरू कर दिया है। अकीदतमंद इंतहाई खलूस व अकीदत से फातिहा ख्वानी और दुआ और दीगर इबादत में मसरूफ हैं। दरबार पर खास रूहानी माहौल देखने में आ रहा है। दरबार इंतजामी के मुताबिक ज़ायरीन की सहूलत, नज़्म व ज़ब्त और सिक्योरिटी के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। खबरदार होशियार, सेफ सिटी का जाली और छुपी हुई नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए क्रैकडाउन। पंजाब भर में गाड़ियों की नंबर प्लेट्स छुपाने या तब्दील करने वालों के लिए बुरी खबर है। IG पंजाब अब्दुल करीम की हिदायत पर सेफ सिटी अथॉरिटी ने इंटेलिजेंस AI पर मबनी सर्विलियंस सिस्टम को मजीद सख्त कर दिया है, जिसके बाद अब ऐसी गाड़ियों का बचना नामुमकिन होगा। जदीद AI कैमरे अब मशकूक या बगैर नंबर प्लेट्स को फौरी शनाख्त करके खुदकार अलर्ट जारी करते हैं।
जिसके बाद फील्ड फौरी फोर्स कार्रवाई करते हुए सिर्फ जुलाई में इस सिस्टम से 100 से ज्यादा जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियां पकड़वाए हैं। तर्जमान सेफ सिटी के मुताबिक असल नंबर प्लेट छपाना या रद्दोबदल करना संगीन जुर्म है, जिस पर चालान के अलावा दफा 420, 468 समेत दीगर सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़, जाली या टेम्पर्ड नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल अब कानून की नजर से नहीं बच सकता, क्योंकि पंजाब भर में कायम स्मार्ट सेफ सिटी सेंटर्स जदीद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए मशकूक नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही जाली या किसी कपड़े या टेप से टेम्पर्ड नंबर प्लेट वाली गाड़ी सेफ सिटी कैमरों की रेंज में आती है, सिस्टम फौरी खुदकार अलर्ट जारी करता है। अलर्ट मौसूल होते ही सेफ सिटी ऑफिसर करीबी फील्ड फोर्स को फौरी कार्रवाई के लिए रवाना करता है, जिसके नतीजे में मशकूक गाड़ियों के खिलाफ बर वक्त एक्शन लिया जाता है। अगर कोई दूसरी गाड़ी आपकी नंबर प्लेट इस्तेमाल कर रही है तो फौरन 15 पर कॉल करके इत्तला दें और याद रखें, जाली या अपनी गाड़ी की नंबर प्लेट को टेप या कपड़े से छुपाना और नंबर टेम्पर्ड करना कानूनन जुर्म है, जिस पर न सिर्फ चालान जारी होगा बल्कि दफा 420, 471, 468 और 171 के तहत मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। अपनी गाड़ी पर हमेशा असल, दुरुस्त और सर्टिफाइड नंबर प्लेट इस्तेमाल करें, क्योंकि महफूज सफर की जमानत जिम्मेदार शहरी होने से है। कानकोट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुबैना करप्शन सिंध तरक्की पसंद पार्टी के कारकुनों ने BISP दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। इस मौका पर रहनुमाओं का कहना था कि मुस्तहिक खवातीन से सिम वॉलेट के नाम पर गैर कानूनी तौर पर 1000 रुपए वसूल किए जा रहे हैं, जबकि दफ्तर में आने वाले साइलिन के साथ नामुनासिब रवैया इख्तियार किया जाता है। करप्शन की बाजार घर में जाओ, सरसों ऑफिस वहाँ कारोबार है, जाओ बैंक में वहाँ कारोबार है, आओ इधर बेनजीर ऑफिस में यहाँ दलाल बैठे हुए हैं और आदमियों को तशद्दुद करते हैं। अपने जाती गुंडों को बुला के उनको, हमारे अगवान कमर सोनियानी को कल ने कपड़े फाड़े, इनको तशद्दुद किया है। हमने आज धरना दिया है कि इनके ऊपर फिलफोल पर्चा दिया है, आदमियों को इंसाफ दिया जाए। असांजो धरने जो मकसद इहो आहे त असांजो क़ौमी कारकुन कमर सुरियाणी खे फोन करे डिवाइस माफिया उन्हनि तशद्दुद कयो आहे, उन्हनि ते लठियूं आया अथऊं। असीं चओ पिया तव्हीं क़ौमी कारकुननि खे लठियूं पिया आणो त बक़ाया आवाम जो छा हूंदो। हिते असांखे उहो ख़बर आहे सरियाम हिते सिम जो फी सिम जो 1000 रुपयो वठनि पिया, उन्हनि जा दलाल ॿार बीठल आहिनि, जेको माण्हू अचे थो उन्हनि खां पैसनि खां सवाइ कंहिंखे सिम न पिया ॾियनि। असीं चऊं था DC साहब खे रिक्वेस्ट पिया कयूं त महिरबानी करे माफ़ियाउनि खे। अभी आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान करबला पहुंच गए, जहां गियात हाशिम अल हुसैनी की इंतजामी वफ्द के हमरा मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने करबला का मुकद्दस दौरा किया। इस मौके पर बैनुल अक़वामी ताल्लुकाती अदारे के सरबराह गियात हाशिम अल हुसैनी से इंतजामी वफ्द के हमरा गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से खसूसी मुलाकात की। मुलाकात में करबला के इंतजामी अमूर, दो तरफा मजहबी हम-आहंगी और तलीम और सेहत की सहूलियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर पंजाब ने कम्युनिटी के सरबराह सैयदीना मफदल सैफुल्लादीन की करबला में खिदमात और उनकी रूहानी शख्सियात को जबरदस्त अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा, हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हक की खातर शहादत कबूल की। अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान की ईमान का हिस्सा है। उन्होंने चेहलम के वसी इंतजामात को भी खराज तहसीन पेश किया। गवर्नर ने गियात हाशिम अल हुसैनी को पाकिस्तान दौरे की दावत भी दी है। लाहौर में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। मानसून के बाद खस्ता हाल इमारतों का सर्वे का हुक्म। इजलास में सूबे भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स ने वीडियो तक के जरिए शिरकत की। वज़ीर आला ने मानसून के फौरी बाद तमाम शहरों में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे और PDM विजन के तहत जल्द इसको ठीक करने की हदायत की है। इजलास के दौरान विहाड़ी, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट समेत दीगर अजला के प्रोजेक्ट्स पर रिपोर्ट्स पेश की गई। बताया गया कि 29 शहरों में अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक मुकम्मल फंक्शनल हैं, जबकि 21 में काम जारी है। वज़ीर आला ने भगवानपुरा सानहे में 27 घंटा मौके पर मौजूद रहने पर DC लाहौर और गुजरावाला में रिकॉर्ड बारिश के बावजूद 6 घंटों में पानी निकालने पर DC गुजरावाला समेत वासा और सुथरा पंजाब की कारकर्दगी को खूब सराहा और शाबाश भी दी।
अभी आपको बताएं कि डीपीओ डॉक्टर असद एजाज मल्ली की हिदायत पर तफ्तीशी अफसरान के लिए फॉरेंसिक इवेंट्स पैकिंग मटेरियल के इस्तेमाल पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद जारी है। वर्कशॉप का बुनियादी मकसद तफ्तीशी अफसरान को नए और मियारी फॉरेंसिक एविडेंस पैकिंग मटेरियल के दुरुस्त और मौसर इस्तेमाल के हवाले से तरबियत फराहम करना था। इस मौका पर इंचार्ज PFSC साहिवाल मोहम्मद अहसन ने तफ्तीशी अफसरान को फॉरेंसिक शवाहिद के महफूज पैकिंग, इनके हिफाजत और लेबॉर्ट्री तक महफूज मुंतकिली के जदीद साइंसी तरीकाकार पर तफसीली ब्रीफिंग दी। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक इस वर्कशॉप का मकसद क्राइम सीन से मिलने वाले शवाहिद की हिफाजत, तफ्तीश की मयार को मजीद बेहतर बनाना और पॉलिसिंग में जदीद साइंसी तरीका तफ्तीश करना फिरोग देना है। थाना सदर में तैनात ASI महमद फारूक ट्रैफिक हादसे में जाबाक हो गए। सियालकोट के थाना सदर में तैनात ASI महमूद फारूक के एक दिलखराश ट्रैफिक हादसे में जाबाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल के सामने अचानक जानवर आने के बाइस पेश आया। अभी आपको बता रहे हैं कि अफसोसनाक खबर है, थाना सदर में तैनात ASI मोहम्मद फारूक ट्रैफिक हादसे में जाबाक हो गए हैं। सियालकोट के थाना सदर में तैनात ASI मोहम्मद फारूक एक दिलखराश ट्रैफिक हादसे में जाबाक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल के सामने अचानक जानवर आने के बायस पेश आया, जिससे वो शदीद जख्मी होते। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसे के फौरन बाद मोहम्मद फारूक को तशवीशनाक हालत में तिब्बी अमदाद के लिए पहले डस्का अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां से शदीद जख्मियों के बायस उन्हें गुजरावाला रेफर किया गया था। ताहम जख्मियों की नाब न लाते हुए वो जानवर हो सके। अभी कुछ बात करेंगे जश्न आज़ादी की तैयारियों पर। आपको बताएं कि लियाकतपुर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोर और शोर से जारी हैं। मजीद तफसीलात गुलाम मोहिउद्दीन की इस रिपोर्ट में देखिए। यौम आज़ादी करीब आते ही लियाकतपुर के बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई है। मुख्तलिफ मकामात पर लगाए गए स्टॉल्स पर बच्चों और बड़ों के लिए कौमी परचम, बैचेज, झंडियां और दीगर एशिया दस्तयाब हैं। शहरी बड़ी तादाद में खरीदारी करके जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियों में मसरूफ हैं। हर साल की तरह इस साल भी 14 अगस्त आने वाली है। हम अपने बहनों और भाइयों के साथ झंडियां, झंडे, बैज वगैरह खरीदने के लिए आए हैं। पाकिस्तान को हमारे बुजुर्गों ने बड़ी ही कुर्बानियों के साथ हासिल किया है। आज हम बच्चों को साथ लेके आए हैं, इधर से खरीदारी कर रहे हैं। झंडियां, बैज और जो भी हमारी ये सजावट का सामान है इधर से लेंगे, घरों को सजाएंगे, गलियों को सजाएंगे। नन्हे बच्चों में भी जश्न आज़ादी का जोश तीतनी है। बच्चे सब्ज व सफेद लिबास, कौमी परचम और बैचेज खरीदते हुए बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान से प्यार करते हैं, हमने झंडे, झंडियां, कपड़े ले आए हैं, हम घर सजाएंगे। लियाकतपुर में जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर हैं और शहरी इस कौमी त्योहार को यादगार बनाने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। गुलाम मोहिउद्दीन, 7 न्यूज़, लियाकतपुर। इस्लामाबाद में पीर मोहम्मद मसूद चिश्ती की सदारत में पाकिस्तान बार कौंसिल का 250वां इजलास हुआ। अटॉर्नी जनरल के घर छापे और सहाफियों को नोटिस के खिलाफ मुज़ाहमती करारदादे मंजूर। इस्लामाबाद में पाकिस्तान बार कौंसिल का 250वां इजलास वाइस चेयरमैन पीर मोहम्मद मसूद चिश्ती की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें मुल्क के अहम कानूनी और सियासी सूरत हाल पर तफसीली गौर के बाद मुत्तफिका करारदादे मंजूर की गई। कौंसिल ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान की रिहाइशगाह पर पुलिस छापे और सहाफियों को NCCIA के नोटिस की शदीद मुज़ाहमत की। पाकिस्तान बार कौंसिल ने अटॉर्नी जनरल की रिहाइशगाह पर बगैर वारंट छापे और चादरों चारदीवारी की खिलाफ वर्जी पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इससे गैर आइनी करार दे दिया है। कौंसिल ने NCCIA की जानिब से सहाफियों को हिरासत में लेने और पीका के तहत नोटिस जारी करने की मुज़ाहमत की, इन्हें फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। इसके अलावा नए सूबों के क्याम के लिए आइनी तरीकाकार और पार्लिमानी इत्तफाक की राय पर जोर देते हुए तमाम सियासी जमातों को मदऊ करके कौमी सेमिनार मुनक्किद करने का भी फैसला किया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सेफ पंजाब विजन के तहत ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। मजीद बताएंगे सुहेब हसन। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सेफ पंजाब विजन के तहत ट्रैफिक कवानीन पर बड़ी सख्ती से अमल दरामद है। ख़ुसूसन मोटरसाइकिल वालों को हेलमेट पहनने की हिदायत और बड़े जुर्माने किए जा रहे हैं ताकि हादसात की सूरतों में कीमती जानों का नुकसान ना हो। मेरे साथ इस टाइम कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, क्या वो खुश हैं या नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। आइए देखते हैं। माशाल्लाह जी, मरियम नवाज साहब का विजन है कि हेलमेट मस्ट है, ये इसमें हमारी ज़िंदगी है, ठीक है ना। इसको हमने मतलब है कि हम हर किसी को चाहते हैं कि वो हेलमेट पहन के निकले बस, ठीक है ना जी।
तो हेलमेट जो है ना मस्ट होना चाहिए। अल्लाह, जो हेलमेट नहीं पहनते उनको तो जुर्माने होते हैं और जुर्माने तो माशाल्लाह कर रहे हैं। हेलमेट अभी खाना लेने निकले 2 मिनट में, अभी कुछ नहीं हुआ। ऐसे क्यों झूठ बोलूं, जो है हुआ है। बिल्कुल हिफाजत, एक्सीडेंट होता है तो आपकी हिफाजत के लिए, आपके अहले खाना की हिफाजत के लिए। वो बात आपकी ठीक है ना, लेकिन इंसान निकलता है ना तो हेलमेट लेके निकलता है। अगर 10 मिनट के लिए बाहर निकले ना, ये घर ही साथ ही है, खाना लेके निकले ना तो वो हमें भी पता है। जो 5 मिनट के लिए रोड पे निकलो, हेलमेट पहनो, लाजमी पहनो। जी बिल्कुल, आपने देखा ट्रैफिक पुलिस शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है, लिहाजा शहरियों को भी चाहिए अपने और अपने अहला खाने के बारे में सोचें और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें और हेलमेट को अपनी आदत बनाएं। जी, नुमाइंदा 7 न्यूज़ सुहेब हसन हमें अपडेट कर रहे थे, बेहद शुक्रिया आपका। फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 7 न्यूज़, क्योंकि 7 है सच के साथ।